Bismillahirrahmanirrahim. I hope you're doing well. So today we are studying punctuation marks. So let's find out what are punctuation marks. Actually, we use punctuation marks in order to give emotions to the writing. Whenever we speak, our sound, our pronunciation, our stress, our intonation, they all collectively help whenever we try to convey a message. But it is different case in writing because in writing we do not have such organs, such as speech organs. So we need to use punctuation marks in order to make all things clear, like the longer sentences, the reference sentences, the definitions we want to aid in sentences, and the explanations. So punctuation marks define those things in writing. So there are so many types of punctuation marks. I have got a list which are essentially used for writing skills. Okay, punctuation in the English language helps the reader to understand a sentence through visual means other than just letters of the alphabet. They're not part of the oral grammar, but it is essential to master writing English. So punctuation marks है always है the case with the writing. Okay, तो बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो हम स्पीच के थ्रू क्लियरली बात कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, लेकिन जब वही चीज़ें राइटिंग के अंदर आती हैं तो वहाँ पे हमारे स्पीच ऑर्गन्स नहीं होते. सो डेफिनेटली वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द पंक्चुएशन मार्क्स कि मैसेज वहाँ पे क्या है, कहीं पे एक्सप्लेनेशन है, डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट है, फुल स्टॉप पे बात पूरी हो गई, नेक्स्ट चीज़ है, रेफरेंस बैक है, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है. इन चीज़ों को एडवोकेट करती हैं पंक्चुएशन मार्क्स. There are 14 punctuation marks that I use in English language. There are periods, question mark, exclamation mark, comma, colon, semicolon, dash, hyphen, brackets, braces, parenthesis, apostrophe, question mark again, and ellipses. Okay. So punctuation आपको पता है क्या है? These are the symbols used in writing. Types of punctuation marks. 14 टाइप्स हैं. पहले पीरियड जिसे हम फुल स्टॉप भी कहते हैं, देन क्वेश्चन मार्क. ये सारी जो है वो सैम्पल्स यू मस्ट नो. ओके, कॉमास. कॉमास बहुत सिंपल हैं एंड दीज आर द वेरी बेसिक वंस, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जो आपकी राइटिंग कमांड को थोड़ा सा डीएक्टिव करके एक्सप्रेशंस पैसिव हो. सो इट इज पॉसिबल. Commas are used to indicate breaks in the sentences. We use commas to separate items in a list. For example, Janet put apples, bananas, mangoes, and grapes in the fruit salad. जब भी दो से ज़्यादा चीज़ें हम यूज़ करें या डिवाइड करें तो वहाँ पे दो चीज़ों के बाद दो चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हम कामा यूज करते हैं एंड देन लास्ट लास्ट में एंड, उसके बाद वी सेपरेट द थिंग्स. लेकिन अगर दो चीज़ों के बाद अगर कोई भी कामा है लाइक दिस, वी कॉल इट एन ऑक्सफोर्ड कामा. ऑक्सफोर्ड कामा ऐसी है, सिंपली आप इसे ऐसे समझें कि फॉर एग्जांपल तीन वर्ड्स हैं जिनको हमने सेपरेट करना है, तो पहले हमने दो कामास यूज की, पहले एक कामा यूज होगी, दो वर्ड सेपरेट हो गए. उसके बाद फॉर एग्जांपल दूसरी कामा हम यूज यूज करते हैं तो थर्ड एंड फोर्थ वर्ड होंगे, फोर्थ वर्ड एंड से सेपरेट होगा. तो जब भी एंड से पहले जो कामा आती वी कॉल इट ऑक्सफोर्ड कामा. ये रिसर्च राइटिंग के अंदर बहुत एसेंशियल है. वी कैन नॉट स्किप इट इन रिसर्च. बाकी कॉमन राइटिंग में आप इसको स्किप कर सकते हैं. सो इट इज नॉट कॉमनली यूज इन पाकिस्तानी इंग्लिश राइटिंग. यहाँ पर इंटरनेशनल इंग्लिश राइटिंग के अंदर भी नहीं होती, हाँ, बट इन रिसर्च इट इज यूज्ड. Second, I have to break up long sentences and indicate pause. When we read aloud, we pause at the commas. For example, when the boy saw the wolf pass, he shouted for help. तो कामा का दूसरा पर्पज है, जहां पे भी कामा आती है वहां पे हमें रीडिंग के अंदर पास होना पड़ता है या फिर हम एक पार्ट ऑफ सेंटेंस लिखते हैं. सो इट इज मीन्ड बाय इट. थर्ड, to separate extra information in a sentence. This is information that does not change the meaning of the sentence. For example, a few years later, comma, when Rahul was in college, comma, the circus returned. तो ये होगा a few years later, when the Rahul was in college, the circus returned. Fourth है in direct speech, when a sentence repeats the exact words that were spoken by somebody, they are enclosed within the inverted commas. Quotation marks, for example, Shalini replied, most probably.
जब भी हम फॉर एग्जांपल कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं या फिर फॉर एग्जांपल somebody wants to speak और somebody is about to speak, तो वो नेम लिख के कामा मीन्स दैट सेज, इसकी मीनिंग ये यहाँ पे होगी। ये यही इसी का यूज इसने बता दिया। और जो एग्जैक्ट वर्ड्स होंगे वो हम इन्वर्टेड कामास में लिखेंगे। फिफ्थ है, if quoted words end in a question mark or exclaimed mark, we do not add a comma after them. For example, can I eat my lunch now? Asked a little girl. यहाँ पे हम कामा यूज नहीं करते, ठीक है। If quoted words in the end, ठीक है, कोई भी जो quoted word हो उसके लास्ट में और exclamation mark, we do not use a comma after them, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन मार्क हो या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो तो वहां पे हम कामा यूज नहीं करते। ये इसका एग्जाम्पल है। ओके, कामा के यूजेस हो गए, अब चलते हैं एपोस्ट्रोफी में। द एपोस्ट्रोफी, ये साइन है जो हम यूज करते हैं विद एस बिफोर एस, समटाइम्स आफ्टर एस, is used for two phrases to show possession and contractions. The contraction apostrophe is used to indicate that a letter or letters have been left out फॉर्म अ वर्ड और फ्रेज। एक हम कंट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, दूसरी पोजीशन के लिए, ठीक है। कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर फॉर एग्जांपल लेफ्ट आउट हो गया, लीव आउट हो गया, तो वहां पे हम यूज करते हैं। व्हेन वी स्पीक इंग्लिश वी ऑफन यूज शॉर्ट फॉर्म्स लाइक कांट फॉर कैन नॉट, डोंट फॉर डू नॉट। तो ये जो कॉन्टेक्शन हमने यूज की है, जो वर्ड हमने लेफ्ट आउट किए हैं, छोड़े हैं लॉन्ग स्पेलिंग्स, तो वी कॉल इट कॉन्ट्रैक्शंस। Contractions should not be used in formal writing English, but we need them within the direct speech. ठीक है, डायरेक्ट स्पीच के अलावा फॉर्मल इंग्लिश में ये यूज नहीं होते, ना ही हमें करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कांट है तो वी मस्ट यूज कैन नॉट। उससे आगे some examples of contraction apostrophe are, did you know I have got new cycle? Here contraction apostrophe is I have used for I have. Second है, Arun isn't well, he has been in hospital for 3 days. Isn't, is, not, and he is for he is. Okay. अच्छा example है second one. Okay. He, Arun isn't well, he has been in hospital. Okay. Punctuation marks chart. Chart को देखें. Period, full stop. My name is Beth and I was 18 in July. Question mark. Have you a pen I can borrow? She asked. Exclamation mark. What a lovely view you have here. Sign of exclamation, then comma. We purchase some cheese and purchase some fruit. ये comma है इस पे, colon है यहाँ पे। You have two choices: finish the work today or lose the contract. ठीक है, colon हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे फॉर एग्जांपल एक पार्ट ऑफ सेंटेंस हमें लिखना हो। एक पूरे सेंटेंस को मीनिंग में डिवाइड कर लें, उसका एक पार्ट आपने लिखा, देन कॉलन यूज किया, उसके बाद उसका सेकंड पार्ट लिखा। या फिर फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस आप लिखते हैं, उसी तरह का दूसरा सेंटेंस फॉर मोर एक्सप्लेनेशन इजी वर्ड्स में लिखते हैं, तो वहां पे हम कॉलन यूज करते हैं। समटाइम्स इन राइटिंग वी नीड क्वालिटेटिव लैंग्वेज और क्वालिटी लैंग्वेज, और उसी तरीके से हमें सिंपल वर्डिंग यूज करनी होती है फॉर आवर रीडर्स, वहां पे कॉलन का हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। या कोई भी ऐसा फ्रेज है जिसको हमें तोड़ना है, वी यूज कॉलन। सो कॉलन की यूज बहुत है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा सेंटेंस है, उसको शॉर्ट करने के लिए भी वी यूज कॉलन। उसके बाद है सेमी कॉलन। माई डॉटर इज अ टीचर, माई सन इज अ डॉक्टर। सेमी कॉलन हम यूज करते हैं, इसका जो मेजर पार्ट है वो ये है कि जो हमने सेंटेंस लिखा है उसका सेकंड पार्ट रिमेनिंग है, जहाँ हम कुछ और कहना चाहते हैं। वाइल जब हम कॉलन यूज करते हैं तो कॉलन में एक इंडिपेंडेंट पार्ट होता है इन टर्म्स ऑफ मीनिंग, और उसका जो दूसरा पार्ट है वो भी इक्वली इंडिपेंडेंट है। तो सेमी कॉलन के अंदर पार्ट इज लेफ्ट। किसी भी कन्वर्सेशन राइटिंग फॉर्म के अंदर जो पार्ट लेफ्ट होता है वो हम सेमी कॉलन के लिए में यूज करते हैं, ठीक है। इसकी बहुत और भी यूजेस हैं जो हम एडवांस राइटिंग के अंदर कवर करेंगे। सो डू आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट। डैश, अब डैश की यूज देखते हैं क्या है। एन डैश एंड एम डैश। ओके, Princeton dash New York trains in dash. She gave him her answer. No, M dash.
देखिए जो एन डैश है वो होता है एन लेटर की साइज जैसा, ठीक है, और एम डैश एम लेटर की साइज जितना, तो एम डैश इससे ज्यादा होता है, ठीक है। एन डैश हम यूज करते हैं लाइक कंपाउंड वर्ड्स लिखने के लिए, या दो वर्ड्स हमें कनेक्ट करने के, सो वी राइट लाइक दैट। और जो एम डैश है वहां हम यूज करते हैं जहां पे हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत हो। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस आपने लिख लिया, देन यू फील कि इस वर्ड इस सेंटेंस के साथ मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, जैसे मम्मीफिकेशन, मम्मी एक वर्ड है मम्मी विच इज कॉमनली अ फ्रेज फॉर मॉम और मदर, और वहीं पे मम्मी जो वर्ड है विच इज यूज फॉर इजिप्शियन डेड बॉडीज, जो ओल्ड सिविलाइजेशन है इजिप्ट की, उसके अंदर वर्ड यूज होता था फॉर मम्मीफिकेशन। जो लाशें हैं उनको प्रिजर्व रखने के लिए दे यूज अ टेक्निक एंड विच इज कॉल्ड मम्मीफिकेशन, ठीक है। देन हाइफन, my 8 years old boy loves reading. 8 years old. It also connects a word and the sentences. Okay. Shorter than the dash. 8 year old. अब इसका मतलब ये है कि ये सारे वर्ड ये एक ही वर्ड है, which is compound word or like that. Wickets हैं, चलें इसके sentences पढ़ लेते हैं, बाकी explanation नीचे देखते हैं. Was the defendant there when you arrived? Dresses. These are used in mathematics and sometimes in writing for writing something which is technical. So technical चीजों के लिए हम brackets and braces use करते हैं. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे for example in technical writing we need to present in brackets, तो वहाँ पे हम ये चीजें लिखते हैं. कोई भी command देना हो जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर, but in technical writing it is required. Apostrophe. Sally's hair was blonde and curly. यहाँ पे possessive case है apostrophe का. Quotation mark. Don't go outside, she said. Quotation mark आपको पता है, inverted comma we also call them. जो भी real words होते हैं किसी भी इंसान के बोले हुए वो हम यूज करते हैं quotation marks में. Ellipsis, 3 dots. She began to count 1, 2, 3 and 4. Ellipsis की मीनिंग है कि जो मेजर स्ट्रक्चर है वो हमने दे दिया है, बाकी जो रिमेनिंग चीजें हैं which is already known, तो उनको शॉर्ट करने के लिए we use that. Okay. Until she got to 10, then went to find him. Okay. Use punctuation marks. Use of the period full stop. Use after the abbreviation and initial of the names. They may be omitted in current English. After fractions, amount, time, and dates. Uses at the end of the address. After complete sentences. ये इसकी uses हैं full stop की. आगे है use of the question mark. Use after interrogative questions. उससे आगे use of the exclamation. Use after interjections, the words and the sentences express emotions such as joy, sorrow, surprise, pity, prayer or curse. तो जो भी हमें strong emotions देने होते हैं अपनी speech के अंदर, और जब उनको हम लिखते हैं in writing, so we give them sign of exclamation. Fourth, use of comma. Use for a short or slight pause to separate the words in a list, but it is avoided before end. ये जो ऑक्सफोर्ड कामा वाला मैंने रूल आपको बताया था, तो वो कॉमन राइटिंग के अंदर यूज नहीं होता, लेकिन रिसर्च राइटिंग के अंदर इट इज रिकमेंडेड. यूज टू सेपरेट द एडवर्ब क्लास व्हेन इट इज फॉलोड बाय द मेन क्लास. एडवर्ब क्लास इसका अलग होता है, ठीक है, ये आप मुझे याद दिलाना, इन डिटेल हम पढ़ेंगे इसको. एडवर्बियल केस से ये यूज टू मार्क ऑफ द नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव्स क्लास. In such cases, adjective classes act as coordinate classes. Used to write nouns and prepositions. Used to separate initials and titles. Or used while writing the address. हम use करते हैं like city का name आ गया वहाँ पे comma, then अगली चीज then comma. And then use while writing dates, बिल्कुल. Use after solutions and complementary clause. Okay, use of column है. Column is used when a list, quotation or a long speech is to follow after it. बिल्कुल सही. It is used to explain these words such as namely, as follows, following, for example, etc. इन words के साथ use होता है.
या इनकी मीनिंग इस तरीके से एक्सप्लेन होती है, लाइक इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द वर्ड सच इज namely, is, follows, following, and all these words. Use of the semicolon. The semicolon is also used or used almost as a period full stop within a sentence. ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि वन पार्ट ऑफ सेंटेंस इज यूज और उसका नेक्स्ट पार्ट, फॉर एग्जांपल somebody wants to eat, वहां पे हम इस तरीके से लिखते हैं. सो दे आर यूज्ड लाइक comma या फुल स्टॉप. comma भी ऐसा ही होता है. द वन पार्ट इज गिवन, द सेकंड पार्ट इज अबाउट टू कम. Okay, it is used the end of a thought in a place, and, but, cause, etc. to indicate the thought continues into another. अब यहाँ पे देखें explanation and rules short हैं काफी. तो punctuation marks का ठीक से आपको तब पता लगेगा when you will use by yourself, और इसकी अब बहुत सारी प्रैक्टिस होनी है. सो उसके बाद ये ठीक से क्लियर होगा. Uses of dash.